A very good morning. Myself Hemant Kumar, and today we are going to study the 11th chapter of class 8th science, that is force and pressure. So first of all, the first question which strike on our mind is what is force? So to understand the force, let's use some examples. For example, this is a ball and हम अपने एवरीडे लाइफ में, हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार क्रिकेट खेलते हैं या बॉल से खेलते हैं कुछ, और हम इस बॉल को मेनी टाइम्स थ्रो करते हैं. सो व्हेन वी थ्रो दिस बॉल, कैन यू सी सम चेंजेस? लाइक व्हेन वी आर थ्रोइंग दिस बॉल, कैन यू सी देयर इज चेंज इन द पोजिशन ऑफ बॉल and there is movement in the ball. Similarly, when we press certain soft objects, can you see some changes in that, like change in the shape and size? Yes, there is maybe change in the shape and size. So how these changes occurs? Either in the ball, when the ball are changing its position, and in the different objects which can change its shape and size. This is due to the force applied on them. So in this lecture, we are going to study about the force and its different types. So as I told, when we are throwing the ball can change its position and that ball starts moving. Similarly, when we are stretching or pulling this rubber band starts stretching, and you can see there is change in the original shape of this rubber band. One another example is, this is duster, and when we push this duster, there is change in the position of duster. So this is all due to the force. So we can define the force as a push or pull on an object. So this is the force. So let's write. So force, is a push or pull on an object. Now, you understand the force, but how this force acted on the some object and what changes occurs. So now we know that when we apply force on certain objects, we can see changes like change in the position, change in the shape, and change in the size of an object. So there are different types of forces which acts on different object in different conditions. So let's understand the types of force. So now, types of force. So firstly, the force is divided into two different types, from which one is contact force, and the second one is non-contact force. So first of all, the contact force. So for example, can you push or lift
the book lying on the table without touching it? Is it possible कि हम बिना टच किए बुक को टेबल से लिफ्ट कर सके, उठा सके? अनदर क्वेश्चन इज कि क्या हम बिना टच किए एक बकेट को या किसी बास्केट को उठा सकते हैं? द आंसर इज नो. बिना टच किए, बिना उसके कांटेक्ट में आए, यह पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज द कांटेक्ट फोर्स, कि जहां हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसके कांटेक्ट में आकर के उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स. सो कैन राइट इट एज when a force applied to a body by another body, it is called the contact force. In other words, we can also define this contact force as when any force requires contact to occur, that is known as contact force. So we can write it as when any force requires contact to occur, it is called contact force. Or when a force is applied to an object or to a body by another body, to a body by another body, this is called कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड सपोज कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि बुक को टेबल से लिफ्ट करने के लिए, बुक को टेबल से उठाने के लिए हमने कॉन्टैक्ट फोर्स को यूज किया. लेकिन जब हम इस कॉन्टैक्ट फोर्स को यूज कर रहे हैं तो क्या यहां पे हमारा कुछ एफर्ट लग रहा है? क्या हमारा यह हैंड काम कर रहा है उसमें? अगर हम बकेट को उठा रहे हैं तो क्या उसमें हमारे हैंड का मूवमेंट हो रहा है? यस, हो रहा है. तो यह जो हैंड का मूवमेंट है, यहाँ पे जो हमारे हैंड के मसल्स है वह एक्शन में आ रहे हैं. इस मसल्स के एक्शन की वजह से हम उस बुक को उठा पा रहे हैं या बकेट को होल्ड कर पा रहे हैं. सो दिस इज द मस्कुलर फोर्स. मीन्स व्हेन फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. सो द कॉन्टैक्ट फोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. और इसमें से जो फर्स्ट है दैट इज मस्कुलर फोर्स. और मस्कुलर फोर्स हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स. सपोज कि हम बुक को उठाए तो जब तक हम अपने हाथ का यूज नहीं करेंगे, जब तक हमारा मसल्स, हमारे हैंड के मसल्स एक्शन में नहीं आएंगे, क्या हम उठा पाएंगे? नहीं. अनदर फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सपोज मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं. सो व्हेन आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड यूजिंग मार्कर, देयर इज contact between the marker and the board. So the force which applied between this marker and the board is called frictional force. Frictional force means कि वहां पे एक दूसरे को रगड़ रहे हैं, घर्षण हो रहा है और उसके वजह से वहां पे हम उसे लिख पा रहे हैं. अगर हम इसे जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक उनमें एक फ्रिक्शन, एक घर्षण, एक रगड़ नहीं होगा, क्या हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे. तो सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो अनदर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब हम यहां पे लिख रहे हैं तो क्या यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. बिकॉज यहां जो फोर्स लग रहा है हमारे मार्कर और बोर्ड के बीच में, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. बट जब हम इसे लिख रहे हैं तो हमारा हैंड भी एक्शन में है. तो जो हमारे हैंड और इस मार्कर के बीच में फोर्स लग रहा है, हैंड और मार्कर, यहां पे एक्शन हो रहा है मसल का. सो दिस इज द मस्कुलर फोर्स. लेकिन जो मार्कर और बोर्ड के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स
always act between two surfaces which are in contact and on moving object in opposite to direction of motion. So this is the characteristic feature of frictional force. Another example, you know, this is the ball. और जब हम इस बॉल को थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद हम देखते हैं कि थोड़े देर के बाद यह मूव करते करते खुद ही रुक जाता है। यह क्यों रुकता है? ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द बॉल। और उसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यह बॉल मूव करते करते स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ कम टू second type of force, that is non-contact force. So when we are drawing this marker, इसे जब हम छोड़ दें हाथ से तो क्या यह इसी पोजीशन पे रहेगा? नहीं, यह नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे से, जिसकी वजह से यह मार्कर नीचे की तरफ गिर रहा है। अदरवाइज इसे रुक जाना चाहिए, या ऊपर भी जा सकता था, या नीचे ही जा रहा है। इसका मतलब है कि नीचे से कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या इस मार्कर को नीचे गिरने के लिए किसी टच की, किसी कांटेक्ट की जरूरत है? नहीं। सो सच टाइप ऑफ फोर्स वेयर नो टच और नो कांटेक्ट रिक्वायर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। And this non-contact force is further of three different types, from which one is gravitational force. So what is the gravitational force? अभी हमने बात की कि जब हम इस मार्कर को छोड़ रहे हैं यह नीचे की तरफ गिर रहा है। सो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। सो द ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स डाउन एवरी ऑब्जेक्ट। मीन्स अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करता है, खींचता है, एंड सच फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। Another type of non-contact force is magnetic force, and the example of this magnetic force is compass needle. So the magnetic south pole of compass needle points towards the earth magnetic north pole, because the opposite pole of a magnet attracts each other. तो यहाँ पे जो इस कॉम्पास नीडल का साउथ पोल है हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल के तरफ फेस किया होता है। या हम सिंपली देखें दो मैग्नेट्स को, तो दो मैग्नेट्स जब एक डिस्टेंस पे है और वहां पे वह क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो अट्रैक्ट करके एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। सो सच टाइप ऑफ फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। और यहां पे भी किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है उन दोनों को अपने आप में फोर्स अप्लाई करने में। दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाउ कम टू थर्ड टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अब सपोज दिस इज अ मार्कर, इसे हम रब करें अपने हेयर से, या हम रब करें इसे किसी वुलन क्लॉथ से, और जब हम इसे किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, किसी हल्के पार्टिकल्स के पास लेके जाते हैं, यह उन्हें अट्रैक्ट करता है। Why it occurs? Because of the electric charge। और यह जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यह अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स को, ऑब्जेक्ट को, पीस ऑफ पेपर को अपने तरफ। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहां पे भी किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज
एक डिस्टेंस से जब हम इसे रब करते हैं हेयर पे, आप इसे करके देख सकते हो, या उलन क्लॉथ पे, और हम इसे उसके थोड़े से डिस्टेंस पे रखें, या उसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक डिस्टेंस से वह अट्रैक्ट कर पाता है, एंड दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, today's we have studied about the force and its different types. Thank you and happy learning.